إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم النار يعرضون عليها غدوا وعشيا عن براء بن عازب رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا إخواني لمثل هذا فعدوا رواه مسلم. لب قلزم کو سعادت دینے والے، میرے خطروں کو گہرائی عطا کر، ہے محروم بصیرت دل کی آنکھیں، عطا کر ان کو بینائی عطا کر، تخیر کو بلندی کی سند دے، تفکر کو توانائی عطا کر، آمین یا رب العالمین. ہر قسم کی تعریف و توصیف، بزرگی و بڑائی، عزت و جلال، شان و شوکت اس عظیم رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے، جس نے مجھے اور آپ کو اس کے گھر میں اذان سے قبل جمع ہونے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائی. وہ اللہ جو مالک الملک تؤتی الملک من تشاء ہے، ہر چیز کی بادشاہت اس کے ہاتھ میں، یہاں تک جو میری آواز نکل رہی ہے میں کیا بولوں اسی کے مرضی سے ہے، ہر پتا اسی کے حکم سے گرتا ہے. اگر میں آگے بڑھ کے کہوں تو غلط نہیں ہوگا. ہماری سوچ کمزور پڑ چکی ہے اس رب العالمین کی عظمت کو پہچاننے کے لیے. جس دن ہم اس خالق کائنات کی عظمت کو پہچان لیں گے، برادران یاد رکھنا ہمیں اس کی نافرمانی کرتے ہوئے خوف سا محسوس ہوگا. اگر میں اسی بات کو لے کر آگے بڑھتے چلوں تو یہ بات ضرور یاد رکھنا، بس آج کے جمعہ کی بات تو نہیں کرتا، بلکہ میری اور آپ تمام کی ساری زندگی اس اللہ کی حمد میں گزارنا چاہیں، اس کی بزرگی کو پیش کرتے ہوئے گزارنا چاہیں. لوگوں اس بات کو ذہن نشین کر لو، ہماری عمریں ختم ہو جائیں گی، اس کی حمد میں، اس کی ثنا میں، اس کی کبرائی میں ذرا برابر کی کمی نہیں آ سکتی. میں اس عظیم پروردگار عالم کی حمد کو اس جملے پہ رکا کے آگے بڑھنا بہتر سمجھوں گا، جس کا ذکر بھی خود رب العالمین نے بیان کرتے ہوئے فرمایا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. بعدہ درود و سلام کی بارشیں نازل ہوں تمام انبیاء کرام پر علیہ الصلاۃ والسلام، خصوصاً و بالخصوص میرے اور آپ کے آخر الزماں احمد مجتبی محمد مصطفیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ان گنت لامحدود درود و سلام ہو. اللہم صل و بارک علیہ. برادران اسلام، میں نے آپ لوگوں کے درمیان سورہ مومن کی
मुकम्मल आयत नहीं बल्कि एक आयत का छोटा सा हिस्सा आप लोगों के सामने रखा और एक हदीस का एक छोटा सा टुकड़ा आप लोगों के सामने पेश किया। जैसा कि आप लोगों के इल्म में है, आज का जुमा जिस मौजू पर मैं आप लोगों के दरमियान अपने नाक़िस इल्म को लेकर के बातें पेश करने की कोशिश करूँगा वो है अज़ाब क़ब्र। बिरादरान, अज़ाब क़ब्र एक लंबा जुमला है। ये जैसे ही इंसान के ज़बान पे कब्र का जुमला आता है, इंसान को झंझोड़ करके रख देता है। लेकिन आपने बार बार सुना होगा, इंसान के पास, किसी के पास ज़ाती मकान है या नहीं है वो मालूम नहीं। कोई इंसान दुनिया की ज़िंदगी अपने ज़ाती मकान में गुजारता है, कोई इंसान अपनी ज़िंदगी किराए के मकान पे गुजारता है, कोई अपने बाबा के मकान में अपनी ज़िंदगी गुजार लेता है, कोई अपने भाई के मकान में ज़िंदगी बसर करता है। लेकिन याद रखना, जैसे इंसान की सांसों का रिश्ता उसके जिस्म से टूट जाएगा, उसका ज़ाती मकान तैयार है जिसको कब्र कहते। कभी हमने उसके बारे में सोचा, उसके बारे में गौर किया, उसकी ठंडक कैसे फरावान होगी, उसकी गर्मी को मैं कैसे ख़त्म करूँगा, उसके अंदर आने वाले मसाइल का हल क्या किस चीज़ के अंदर है? सीधा बैठिए आप, किसके अंदर है? कभी आपने उसको गौर किया? कभी आपने इसके बारे में सोचा? आपने बार बार सुना होगा, एक शायर झंझोड़ करके रख देता है, आपके इल्म में भी होगा। क्या कहा? दुनिया के ए मुसाफिर मंजिल तेरी कब्र है, अरे तय कर रहा है जो तू 2 दिन का ये सफर है। जब से बनी है दुनिया लाखों करोड़ आए, बखी रहा न कोई मिट्टी में सब समाए। इस बात को न भूलो सबका यही हशर है, दुनिया के ए मुसाफिर मंजिल तेरी कब्र है। ये ऊंचे ऊंचे महले कुछ काम के नहीं है, ये आलीशान बंगले कुछ काम के नहीं है, 2 गज जमी का टुकड़ा छोटा सा तेरा घर है, अरे दुनिया के ए मुसाफिर मंजिल तेरी खबर है। कभी हमने गौर किया? बिरादरान इस्लाम, इंशाअल्लाह अपने वक्त को सामने रखते हुए, अपने मौजू को समेटते हुए इंशाअल्लाह चंद बातें आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। उम्मीद है जो बातें क़ाल अल्लाह और क़ाल रसूल से निकलेंगी इंशाअल्लाह अमल करेंगे। अल्लाह मुझे और आपको यहाँ से बाहर निकलने से पहले पहले मालिक तू हमसे राजी हो जा, तेरे और तेरे हबीब के बातों पे हमें अमल की तौफीक नसीब फरमा, आमीन या रब्बल आलमीन। बिरादरान इस्लाम, अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हदीस मैंने आपके सामने रखी, इंसान की जिंदगी में, इंसान के पास साथ इंसान कई मरहले से गुजरता है। उसका एक मरहला उसके माँ का कोख होता है, उसकी माँ का पेट होता है। उस मरहले के चंद माह के बाद उसे आलमे दुनिया में जिंदगी बसर करनी होती है। उसकी मुद्दत भी कोई कैद नहीं है, वो कब तक जिएगा मालूम नहीं। उसके बाद जो उसका सफर शुरू होता है, जिसको आलमे बरज़ख कहते हैं, कब्र की जिंदगी कहते हैं, वो आलमे बरज़ख, अल्लाहु अकबर। बिरादरान, ये वो जिंदगी है जिस जिंदगी को सामने रखते हुए सहाबा इकराम कांप जाया करते थे। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जिंदगी का कि आखिरी अय्याम है, आखिरी अय्याम। अगर फजीलत बताते हुए चलूं तो लंबी बात होगी। ये वो अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, अल्लाह के नबी ने पूछा, मेरे अबू हुरैरा तू मांग, क्या मांगना चाहता है? मैं दुआ करूंगा अल्लाह तुझे अता करेगा। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, अल्लाह के नबी, एक ख्वाहिश है, जैसे आपके जबान से जो जुमले निकले, मेरे लिए दुआ कीजिए, अल्लाह उन हदीसों को मेरे हाफिजे में मजबूत कर दे। अल्लाह अकबर। न दुनिया की चाहत थी, न दुनिया की तलब थी, न ख्वाहिशात की हिर्स थी। मांगा तो भी क्या मांगा? मेरे मुस्तफा के उन हदीस को मांगे ताकि वो मेरे हाफिजे में मजबूत बैठ सके। जिंदगी के आखिरी अय्याम अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने बिस्तर पर लेटे हुए हैं। गौर से सुनना नौजवानों, आपसे भी गुजारिश है, अमल की नीयत से सुनना। बिस्तर मर्ग पे हैं, रो रहे हैं,
पूछने वालों ने पूछा, वो अबू हुरैरा रोते क्यों हो, रोने का सबब क्या है? अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, मुझे ऐसे लगता है मैं अब दुनिया से निकलने वाला हूं, मेरा सफर अब बड़ा लंबा है और मेरे पास तोशा बड़ा मुख्तसर है। अल्लाह अकबर। तोशा बड़ा मुख्तसर छोटा सा तोशा है और मेरा सफर बड़ा लंबा है, मुझे डर है इस लंबे सफर में मेरे साथ क्या होगा। उमर बिन अब्दुल अजीज बिरादरान, जिनको 5वें खलीफा भी कहा जाता है, खबरस्तान गए हैं और आवाज लगाई साथियों के पास, वो लोगों को ही पूछो तो सही इनसे जो कब्र के मनो मिट्टी के नीचे दफन है, इनकी वो जबानें जो हमेशा लज्जतों को चका करती थी, आज इन जबानों को कीड़े लगे हुए हैं। अल्लाह अकबर। आज ये जबानें कीड़े खा रहे हैं। वो आंखें जो गुरूर से उठते थे, उन आंखों में दीमक लगी हुई है। वो सीने जो गुरूर से तकब्बुर से अड़े रहते थे, आज वो सीने खाली हो चुके हैं। वो हाथ पैर, वो सुरमा जिनकी चमक से बड़े बड़े पहलवान कांपा करते थे, आज वो हाथ बोसीदा हो चुके हैं। ये कहते हुए ज़ारो खितार रोने लगे हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज। ये कब्र है जिसको याद करके सहाबाए कराम कांप जाया करते। इसीलिए अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसके रावी हजरत बरा इब्न आदिब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु है, अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्रिस्तान में बैठे वहीं कब्र खोदी जा रही है। अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में एक लकड़ी है। अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्र को मार मार के कहते हैं, या इख्वानी लिमिथली हाज़ा फ़अइद्दू, वो मेरे भाइयों, इसके अंदर जाने से पहले इसकी तैयारी कर लो इसकी। मालूम नहीं बिरादरान, मैं यहां से मेरे घर पहुंचूंगा भी या नहीं पहुंचूंगा, मालूम नहीं हम यहां मस्जिद से बाहर निकलेंगे या नहीं निकलेंगे, मालूम नहीं हमारी सांसों का रिश्ता हमारे जिस्म से कब खत्म होगा। क्या हमने तैयारी कर ली? क्या हमने अपने रब को मना लिया? क्या हमने अपने रब्बुल आलमीन को राजी कर लिया? वो उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, जिनके बारे में अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी के अंदर खड़े होकर कहते, मादारा उस्मान मामिला बादल यौम, वो क़यामत की सुबह तक आने वाले लोगों सुन लो, आज के बाद से मेरा उस्मान कोई नेकी नहीं करेगा तो भी जन्नती है। मेरा उस्मान आज के बाद कोई नेकी नहीं करेगा तो भी जन्नती है। एक मर्तबा अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत सारे दीनार और दिरहम अपने हाथ में लेके आए, जो हजरत उस्मान प्यारे नबी को तोहफे के तौर पे भेजे हुए थे। अल्लाह के नबी उन पैसों को उछालते जा रहे थे, कह रहे थे, अल्लाह मैं मेरे उस्मान से राजी हो गया हूं, अल्लाह तू भी मेरे उस्मान से राजी हो जा, परवरदिगार तू भी मेरे उस्मान से राजी हो जा अल्लाह। ये वो हजरत उस्मान जिनको एक महफिल में अल्लाह के नबी ने 3 मर्तबा जन्नत की बशारत दी थी। क्या बात थी बिरादरान, क्या बात थी। हजरत उस्मान जब कब्रिस्तान जाते ऐसे रोते सारी दाढ़ी आंसू से भीग जाती, दाढ़ी आंसू से तर हो जाती। पूछने वाले साथियों ने पूछा, क्या बात है उस्मान, तुम्हारे सामने जन्नत और जहन्नम के नक्शे बयान किए जाते हैं, आपको इस कदर रोना नहीं आता, कब्र के पास आते तो ऐसे रोते हैं। हजरत उस्मान हमेशा बयान करते, मेरे भाइयों ये वो कब्र है जहां पर कामयाबी आखिरत की कामयाबी पर इस्तेदलाल करती है। यहां कामयाब हो गए तो वहां कामयाब, उसकी तैयारी के लिए हमारे पास क्या है, उसके बारे में हमारी सोच क्या है, इंशाअल्लाह मैं आगे बताते चलूंगा। आखिरी बात सुनना, हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जिंदगी के आखिरी घंटे गिन रहे हैं। बेटे के गोद में हजरत उमर का सर है, हजरत अब्दुल्ला के गोद में उमर का सर है। हजरत अब्दुल्ला से कहते, मेरे बच्चे मेरे सर को मिट्टी में रख दे, अल्लाह मेरे सर को मिट्टी में देख करके मुझसे राजी हो जाए, क्योंकि मैं किसी मंजिल में जाने वाला हूं, मैं ऐसे जगह में जाने वाला हूं जहां मेरे साथ मेरे अमल के अलावा कोई आने वाला नहीं। मेरे सर को मिट्टी पे रख दे। हजरत अब्दुल्ला ने कहा, बाबा सर मिट्टी पे हो तो मिट्टी में हो या गोद में हो क्या फर्क पड़ता है। हजरत उमर फारूक बयान करते, मेरे बच्चे अब्दुल्ला, अल्लाह तेरी मां तेरे ऊपर रोए, मैं चाहता हूं कि मेरा सर मेरी मिट्टी पर रहे,
اللہ میرے سر کو مٹی میں دیکھے اور میری عاجزانہ میری مغموم شکل کو دیکھے, میرے بہتے ہوئے آنسوں کو دیکھ کے مجھ سے راضی ہو جائے, اس سفر میں آنے والے سفر میں میرے لیے آسانی ہو سکے. اللہ اکبر. کبھی ہم نے غور کیا تکیے پہ سر رکھنے کے لیے جا رہے ہیں, تکیے پہ سر رکھنے کے لیے جا رہے ہیں, کبھی سوچا آج میں سر رکھ رہا ہوں, معلوم نہیں میرا سر اس تکیے سے اٹھے گا یا نہیں اٹھے گا, معلوم نہیں میرے رب کو میں کیا جواب دوں گا. بستر پر لیٹے ہوئے ہیں, ہاتھوں میں موبائل کے ننگے ناچ چل رہے ہیں. استغفر اللہ. اللہ ہماری حفاظت کرے, اللہ ہماری حفاظت کرے. کیا جواب ہے ہمارے پاس برادران؟ اب جب نوجوانوں سے کہیں, اکثریت نوجوانوں کا طبقہ کیا کہتا ہے؟ دیکھا جائے گا, ہے نا, دیکھا جائے گا. ارے عمر سے پوچھو کیا دیکھیں گے, وہ کانپ رہے ہیں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھو, رو رو کر کے داڑھی آنسوں سے تر ہو چکی ہے. عمر بن عبدالعزیز سے پوچھو, اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے رکھ کے مردوں سے سوال کرتے ہیں, تم سے مجھ سے بہتر تھے, تمہاری چمڑی میری چمڑی سے خوبصورت تھی, تمہارا قد مجھ سے چوڑا تھا, تمہارا محل میرے گھر سے بڑا تھا, تمہارے دسترخوان میرے دسترخوان سے خوبصورت سجے تھے. آج تم ایسی مٹی میں سوئے ہوئے ہو جس کا مکمل جسم کیڑوں کی غذا بن چکا ہے. برادران اسلام, عزیزان گرامی, وہ نبیوں کے سردار میرے اور آپ کے نبی قبرستان گئے ہیں, قبر کو مار مار کے مجھے اور آپ کو جگانے کے لیے کہتے ہیں, وہ بھائیوں اس کے اندر آنے سے پہلے اس کی تیاری کر لو. آج ہم کہاں ہیں؟ شاعر اسی لیے کہتا ہے, اے غافل مسلم ہوش میں آ. کیا کہا؟ اے غافل مسلم ہوش میں آ, کیا دل میں ہے کچھ خوف خدا, جب تیرا جنازہ نکلے گا اس وقت کا عالم کیا ہوگا. تیری سانسیں جو تیرے پاس ہے اس کی غنیمت جان, اپنے آپ کو بنانے کی کوشش کر, اپنے آپ کو سجا لے. تیرے جسم کو دیکھ رہا ہے, تیرے نامہ اعمال کو دیکھ لے. تو دنیا کی دولت کو دیکھ رہا ہے, تیری نیکی اور بدی کے تو پر ذرا نظر ڈال کر کے دے, کیونکہ منو مٹی کے نیچے مجھے اور آپ کو جانا ہے. برادران اسلام, میں نے جس حدیث کو آپ کے سامنے رکھا, جس کے راوی حضرت براء بن عازب ہیں, وہ خود بیان کرتے ہیں. ایک لمبی حدیث ہے, اس کو سن لیں, اگر وقت ملا تو آگے, ورنہ اپنی بات کو ختم کر دوں گا. برادران, قبر کوئی معمولی چیز نہیں ہے. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, روزانہ ہماری جگہ ہمیں پکار کے کہتی ہے, انا بیت التراب, انا بیت الدابہ, انا بیت الوہا. او نادان, تو کہاں بھولا بھولا بھٹکا بھٹکا جا رہا ہے؟ میں مٹی کا گھر ہوں, میں خلوتوں کی جگہ ہوں, میں کیڑے مکوڑوں کا گھر ہوں. تیرے ساتھ کوئی آنے والا نہیں ہے, تیرے ساتھ کوئی بیٹھنے والا نہیں ہے. تجھے سنگ مرمر میں دفن نہیں کیا جائے گا, تو خلوتوں میں آئے گا, تو مٹی میں آئے گا, تو اندھیری جگہ میں آ کر کے میرے ساتھ رہے گا. یاد رکھ, میں جنت کے باغوں میں سے ایک باغیچہ ہوں, جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہوں. اپنے آپ کو تو بنا کر کے آ, اپنے آپ کو تو سجا کر کے آ. غنیمت جان لو مل بیٹھنے کو, جدائی کی گھڑی سر پہ کھڑی ہے. غنیمت جان لو برادران, آج ہماری زندگی ہے, ہماری قبر بھی ہمیں پکار کے بیدار کرتی ہے. اب تو جاگ جا, اب تو بیدار ہو جا, اب تو اپنے آپ کو بنا لے, اب تو اپنے آپ کو راضی کر لے. میری مائیں اور بہنیں, آپ بھی ہوں گی, غور سے سننا, اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دو. آج سن رہے, معلوم نہیں کل یہ حالات قبر میں ہمارے ساتھ ہوگی. کل کا سورج ہم دیکھیں گے بھی یا نہیں دیکھیں گے معلوم نہیں. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, سارے صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں, اس طریقے سے بیٹھے ہوئے ہیں جیسا کہ ان کے سروں پر کوئی پرندہ بیٹھا ہوا ہے. یہ ہلیں گے تو پرندہ اڑ کے نکل جائے گا. اطمینان سے عمل کی نیت سے سننا. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, آج میرا موضوع قبر کے اوپر ہے اور عذاب پر ہے. میں انشاءاللہ مومنوں کی صفت پر پھر کبھی روشنی ڈالوں گا. اللہ کے نبی نے فرمایا, جب انسان کی زندگی کا وقت ختم ہو جاتا ہے, اس کے جسم سے جب اس کے سانسوں کا رشتہ ٹوٹنے لگتا ہے, فرشتہ جنت کے سفید کپڑا لے کر کے زمین پہ اترتا ہے, اس سے دور جا کر کے بیٹھ جاتا ہے. ایسی خوشبو مہکتے رہتی ہے, زمین نے کبھی ایسی خوشبو کو سونگا نہیں ہوگا. تھوڑا آگے آ جاؤ آپ لوگ, تھوڑا آگے آ جاؤ آپ لوگ, تھوڑا آگے آ جائیے.
सूंगा नहीं होगा। ऐसा कपड़ा लेकर के जब फरिश्ता आता है, मलकुल मौत आते हैं, आने के बाद अल्लाह अकबर उस नेक रूह के पास जाके बैठते हैं, उसके जिस्म से उसकी रूह को ऐसे निकाल लेते हैं जैसा कि भरे हुए प्याले से एक पानी का कतरा निकल जाता है। आसानी के साथ उसकी रूह को लेकर के निकल पड़ते हैं। वो जन्नती कपड़ा उसमें उसकी रूह को लपेट लेते हैं, फरिश्ते अपने गोद में उठा करके चल पड़ते हैं। हर आने जाने वाले फरिश्ते उसकी रूह को सलाम करते हुए उसके बारे में पूछते हैं, ये किसकी है? ये फला इब्ने फला की है। उसको आसमान की तरफ उठाया जाता है, आसमान के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, फरिश्ते उसके इस्तकबाल में दूसरे आसमान तक चलते हैं। अल्लाह से दुआ करे बिरादरान, अल्लाह मेरी और आपकी रूह को इसी पाकीज़ा बना दे, अल्लाह हमारी और आपकी रूहों को सालिहीन में से बना दे, आमीन या रब्बल आलमीन। बिरादरान इस्लाम, इसके मुखालिफ जब गुनहगार इंसान, जिस काफिर फासिक फाजिर दुनिया को अपनी आजमाइश में डूबा हुआ इंसान, उसकी रूह जब कब्ज करने का वक्त आता है, एकदम गंदा कपड़ा लेकर, बदबूदार कपड़ा लेकर फरिश्ते बैठ जाते हैं। अजाब यहां से इसका शुरू है, अजाब इसका यहीं से शुरू है बिरादरान, यहीं से उसका अजाब शुरू। गंदा कपड़ा, बदबूदार, मलकुल मौत आता है, देखते ही उसकी रूह उसके जिस्म में भागने लगती है। अल्लाह हिफाजत करे, अल्लाह हिफाजत करे। हमने अपनी दुनिया को सब कुछ समझ लिया, हमने अपने आप को आजमाइश में डाल दिया। उसकी रूह जब उसके जिस्म में भागने लगती है, फरिश्ता कहता है, ये अल्लाह की नाराज करदा रूह इसके जिस्म से बाहर निकल, इधर उधर भागती है। अल्लाह खुद बयान करता है, इसके पीठ पर, इसके चेहरे पर, इसके दुबर पर, इसकी चूतड़ पर मार मार करके इसके जिस्म से इसकी रूह को ऐसे घसीटा जाता है जैसा कोई रेशम का कपड़ा जर कांटे में फंसा हुआ है और उसको घसीटने पर कैसे फट करके निकलता है, ऐसे इसकी रूह फाड़ करके खींच ली जाती है, गंदे कपड़े में लपेट कर। किस वजह से? बस इसने इस सड़ी दुनिया को अपना बना लिया। बस नौजवानों ने अपनी सारी जिंदगी इस गंदी दुनिया के हवाले कर दिए। वो प्यारे नबी के दीवानों, गौर से सुनो, मेरे मुस्तफा ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस दुनिया को जिसके पीछे मैं और आप जवानी में बूढ़े नजर आ रहे हैं, अल्लाह के नबी फरमाते हैं इसकी कदर अल्लाह और उसके रसूल के, अल्लाह के नजर में एक मच्छर के पर के बराबर की भी होती। अल्लाह इस जमीन पे जीने वाले काफिरों को एक घूंट पानी भी नसीब नहीं करता। इससे भी बुरी दुनिया है ये। इस दुनिया के लिए आखिरत को बर्बाद कर रहे हो बिरादरान। आखिरत में देखेंगे, कब देखोगे? लोगों का यही है ना, देखा जाएगा, कल से कर लेंगे, परसों से करेंगे। नौजवानों, आपसे खास करके गुजारिश है, बुजुर्गान मिल्लत, आपसे बड़े अदब से गुजारिश है, मैं यहाँ किसी का छोटा या बड़ा भाई बन के आया हूँ, मेरी बात पे बुरा मत समझना। जिस कल का मैं और आप इंतजार कर रहे हैं, अगर वो कल फरिश्ते की मौजूदगी में आए तो क्या करोगे? अगर वो कल का सूरज कब्र में निकलेगा तो क्या करोगे? कल देखोगे, कब तक देखोगे? जब फरिश्ते पूछेंगे तो क्या दिखाओगे फरिश्ते के पास? अल्लाह अकबर। जब अल्लाह उठा करके खड़ा करेगा मैदान महशर में, कब का इंतजार करोगे? पुल सिरात पे जब गुजरना पड़ेगा, कट कट करके लोग जहन्नम में गिर रहे होंगे, किस दिन का इंतजार करोगे? मेरी बहन, तुझसे भी गुजारिश है, सज धज करके इस्लाम की चादर को फाड़ के इस्लाम को बदनाम करके बेपर्दा निकलती है। गौर करना, अगर उसी हाल में मौत का फरिश्ता आ जाए तो क्या करेगी? सोच करके तो देख। हया हमारे ईमान का एक हिस्सा है जिसको तार तार करके मैं और आप गुजर रहे हैं। क्या करोगे? अल्लाह मेरी और आपकी हिफाजत करे। अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मार मार के उसके जिस्म से रूह घसीट ली जाएगी, गंदे बदबूदार कपड़े में लपेट करके इसको लेके फरिश्ते निकलेंगे, फरिश्ते इसके ऊपर मलामत करेंगे, आसमान पे चढ़ने की कोशिश करेंगे, दरवाजे बंद कर दिए जाएंगे। अल्लाह अकबर। अल्लाह के नबी ने फरमाया, इसका अजाब शुरू है। इसे किस तरीके से? कब्र में ला करके जब उसके जिस्म में उसकी रूह को डाल दी जाएगी। अल्लाह अकबर।
खुश नसीब है वो इंसान जिसके पास अल्लाह के नबी ने फरमाया 2 फरिश्ते आएंगे, आवाज बिजली जैसी होगी, नाखून से जमीन फाड़ करके जमीन फाड़ करके उसे उठा करके बिठा देंगे। बिरादरान, जब उससे सवाल किया जाएगा, उसके सराहने उसकी नमाज होगी, दाएं बाएं रोजा और ज़कात होगा, पैर के पास उसके नेक अमल होंगे। कभी हमने गौर किया, कभी हमने सोचा, जब जनाजा उठाने वाला अपना बाबा होगा, जनाजे को कांधे देने वाले मेरे भाई होंगे, मेरी जनाजे को लेके चलने वाले मेरे रिश्तेदार होंगे, आंखों में आंसू होंगे, लेकिन कब्र में आने वाला कोई नहीं है। वो है तो हमारा नेक अमल है, मेरी नमाज है, मेरा रोजा है, मेरा ज़कात है, मेरे नेक अमल है, जो चारों तरफ से इंसान को घेरी हुई है। कितना खुश नसीब होगा वो, उसको दिलासा दिलाएगा, उसको हिम्मत दिलाएगा, किस शक्ल में आएगा। अल्लाह अकबर। अल्लाह के नबी ने फरमाया एक खूबसूरत नौजवान के शक्ल में आके खड़ा हो जाएगा, कहेगा मुझे जानता है मैं कौन हूं? वो कहेगा मैंने आज से पहले इतनी खूबसूरत शक्ल कभी नहीं देखी, आज से पहले इतनी खूबसूरत शक्ल किसी की नहीं देखी, मैं पहली मर्तबा देख रहा हूं। कहा तू मुझे कैसे भूल गया, मैं तो तेरा नेक अमल हूं। अल्लाह अकबर। क्या कहेगा? मैं तेरा नेक अमल हूं, मैं तेरी नमाज हूं, मैं तेरी अंधेरी तारीकी की सलाह हूं, मैं तेरे उठते हुए दुआएं हूं, मैं तेरी ज़कात हूं, मैं तेरे वालिदैन की खिदमत हूं, मैं तेरा हज हूं, मैं तेरे भूख और प्यास को बर्दाश्त करने हुए रोजे हूं, मैं किसी के गज़ब को तू देख करके खामोश हो जाता था, जुल्म सहता था लेकिन जुल्म नहीं करता था, मैं तेरा वो नेक अमल हूं, मैं तेरा सदका हूं, मैं वो सारा नेक अमल गिनाएगा, मैं वो हूं। वो अल्लाह का शुक्र अदा करके कहेगा अल्लाह तेरा शुक्र है, जिसका वादा तूने किया था अल्लाह वो वादा तूने पूरा कर दिया। ये कब्र की जिंदगी है। इसके मुखालिफ फरिश्ता लाकर उठा करके खड़ा करेगा, उसको बिठा देगा, उसको उठा करके। कौन है उसके दाएं बाएं? क्या आएगा उसको हिम्मत देने के लिए? कौन चीजें आएंगी? फरिश्ता सवाल करेगा मैं रब्बुक, वो भयभत से कांप रहा होगा, कहेगा हाय हाय लादरी। सूरह सजदा को उठाओ, अल्लाह ताला फरमाता है, क्या फरमाया अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने? मेरा रब्बुल आलमीन फरमाता है जब इंसान की रूह को खींच ली जाएगी, ला करके रब के सामने खड़ा किए जाएंगे, वो पुकार के कहेंगे रब्बना अबसरना व समिअना फरजाना। मेरे परवरदिगार मैंने देख लिया मालिक, मैंने देख लिया, समियाना मैंने सुन भी लिया परवरदिगार, इस फरिश्ते की आवाज को सुन लिया, मैं आंखों से देख लिया। अल्लाह मुझे दोबारा दुनिया में जाने का वक्त दे अल्लाह। नअमन सालिह, मैं नेक अमल करना चाहता हूं परवरदिगारा। मिलेगा वक्त, जन्नत और जहन्नम की बुकिंग ऑफिस है दुनिया। क्या कहा? जन्नत और जहन्नम की बुकिंग ऑफिस है दुनिया। अमल देकर टिकट ले लो जहां जाने की ख्वाहिश है। अपने जिस्म से रिश्ता टूटने से पहले इसको गनीमत जान लो लोगों, इसको गनीमत जान लो। अपने आप को अल्लाह के हवाले कर दो, फिक्र आखिरत की करो, कब्र की तैयारियों में लग जाओ। बिरादरान, अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उससे पूछेगा फरिश्ता मर रब्बुक, तेरा रब कौन है? तारुफ बता तेरे रब का। वो क्या कहेगा मालूम? हाय हाय लादरी, अफसोस मेरे ऊपर, फरिश्तों मैं नहीं जानता, मुझे मालूम नहीं है। अल्लाह मेरी और आप तमाम की हिफाजत फरमाए। अल्लाह कब्र के अंदर हमें, मुझे और आपको साबित कदम रखे, आमीन या रब्बल आलमीन। बिरादरान, पूछेगा वमा दीनुक, किस दीन पे था? तेरे दीन का तारुफ बयान कर। वो कहेगा मुझे मालूम नहीं। तेरे रसूल का तारुफ बयान कर, कहेगा मुझे मालूम नहीं। अल्लाह अकबर। एक बुरी शक्ल वाला नौजवान आएगा, शक्ल के एतबार से बुरा। मेरी माएं और बहनें आप भी गौर करना, शक्ल के एतबार से बुरा। वो सामने खड़ा होकर कहेगा तेरे लिए बर्बादी हो, जो बर्बादी वाला अमल किया तू किया करता था। अल्लाह अकबर। वो कहेगा तू कौन है? मैंने आज से पहले इतनी बुरी शक्ल नहीं देखी। अल्लाह अकबर। वो बुरी शक्ल वाला कहेगा तू मुझे भूल गया?
ارے میں تو تیرا گناہ ہوں. اگر میں اپنے انداز میں اس جملے کی وضاحت کروں تو غلط نہیں ہوگا. ارے میں تو تیری آئی پی ایل کی بیٹنگ ہوں, ہے نا, میں تو تیری آئی پی ایل کی بیٹنگ ہوں, میں تو تیرا پب جی ہوں, میں تیرا واٹس اپ ہوں, میں تیرا گندا فیس بک ہوں, میں تیری گندی نمائش کردہ موبائل کی بدصورت شکل ہوں. آج مجھے تو نہیں پہچانتا, میں تیری بے حیا بے پردگی ہوں. اللہ اکبر, میں تیرا زنا ہوں, میں تیرا شراب ہوں, میں تیرا جوا ہوں, میں تیرا وہ ظلم ہوں تو تیرے بوڑھے ماں باپ پہ کیا کرتا تھا. میں وہ تیری وہ نافرمانی ہوں جو راتوں کے اندھیرے میں کیا کرتا تھا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. اللہ میری اور آپ کی حفاظت کرے. ہے کوئی جواب؟ ہے کوئی جواب؟ کیا ہوگا اس کا؟ کیا حالت ہوگی اس کی؟ کس حال میں وہ زندگی گزارے گا؟ برادران, یہ تو چند سالہ زندگی ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا اعمار امتی بین 70 و 60, میری امت کی عمریں 60 سے 70 سال ہیں. 70 سال بہت کم لوگ کراس کریں گے, لیکن اس کی زندگی کا محاسبہ جو قبر کا, اللہ اکبر, ہزاروں سال رہیں گے. اس زندگی کی فکر کرو مسلمانوں. مسجدیں خبیران ہو چکی ہیں, ہم نے بازاروں کو آباد کر دیا ہے. انشاءاللہ وقت ملا تو آگے بڑھوں گا. وہ کہے گا میں تیرا گناہ ہوں یاد کر, وہ پچھتائے گا. اللہ تعالیٰ سے پکار کے زندگی کی بھیک مانگے گا. اللہ وقت دے, اللہ میں نیک عمل کرنا چاہتا ہوں پروردگار, میں اچھا عمل کر کے آنا چاہتا ہوں مالک. اللہ رب العالمین کہے گا میں نے جنت اور جہنم سے وعدہ کیا تھا, لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ. سورہ سجدہ میں اللہ فرماتا ہے ہم نے جہنم سے وعدہ کیا, کیا انسانوں اور جنوں سے ہم تیرے پیٹ کو بھریں گے. آج وقت ختم. اللہ اکبر. اب ذرا چلیں یہ جہنم میں جلنے والے اسباب کیا ہیں, مختصر آپ کے سامنے رکھ کے اپنی بات کو ختم کر دوں. وہ کون سا گناہ ہے, وہ کون سا گناہ ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا, وہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان گناہوں میں اللہ کے نبی نے جو سب سے پہلے فرمایا وہ شرک ہے. شرک. اللہ اکبر. ہم نے سنا کہ گزشتہ جمعہ اس پر بڑی لمبی تفصیل ہوئی ہے, میں اس چیز کو لے کر کے آگے نہیں بڑھنا چاہتا. لوگوں بس اتنا یہ کہ جان لو جس رب نے ہمیں پیدا کیا, یہ آنکھوں کی چمک اس رب نے دی, یہ سنتے ہوئے کان اس رب نے دیے, یہ سوچتا ہوا دماغ اور دھڑکتا ہوا دل اس رب نے دیے. ہم نے اس رب کی ذات میں تاگوں کو لا کر کے ملا لیا. اس رب کی ذات میں ہم لوگوں نے یہ بلیوں کو کتوں کو ملا کر کے بٹھا دیا. اللہ اکبر. اللہ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے. آمین یا رب العالمین. آگے چلیں. دوسرا جو عظیم سبب ہوگا, جو بڑا سبب ہوگا, جس کو اللہ ناپسند کرتا ہے, وہ گناہ. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کے قبرستان سے گزر رہے ہیں, دیکھا 2 قبریں ہیں. اللہ کے نبی نے پوچھا یہ کن کی قبریں ہیں؟ کہا اللہ کے نبی فلاں کے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا ان دونوں قبروں میں عذاب دیا جا رہا ہے. میری خواہش یہ تھی کہ میں سنا دوں, اگر تم ایک مرتبہ اس کو سن لیتے اپنے مردوں کو قبروں میں دفن کرنا بھول جاؤ گے. کیسا عذاب ہوگا اس کا, وہ کیا ظلم تھا ان کا, کیا پاپ تھا ان کا. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان کا پاپ یہ تھا یہ پیشاب کے قطروں سے نہیں بستے. اور وضاحت محدثین اس انداز سے کرتے ہیں یہ پیشاب کرتے تھے لیکن اپنے شرمگاہ کو نہیں چھپایا کرتے, شرمگاہ ان کی ظاہر ہو جاتی. یہ بے حیا لوگ تھے, حیا ان کی ختم ہو گئی تھی, یہ پیشاب کے قطروں سے نہیں بستے تھے. دوسرا چغل خور, چغلی کھایا کرتے تھے, لوگوں کے درمیان فتنے لگایا کرتے تھے, لوگوں کے عیبوں کو لوگوں کے سامنے بیان کیا کرتے تھے. اللہ حفاظت کرے. وضاحت کے طور پہ بتاتے چلوں تو بات لمبی ہوگی, تقریباً میرے 3 سے صرف 4 منٹ باقی ہیں. میں 7 چیزیں آپ لوگوں کے درمیان لایا تھا. اس کے بعد چوتھی چیز یہ ہے, پہلا شرک, چغل خوری, اور اس کے بعد پیشاب کے چھینٹے. یہ قبر کے اندر جس گناہ کے وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کی گناہ کے سبب اللہ قبر میں عذاب دے گا. تیسرا, اللہ اکبر, اللہ حفاظت کرے, تیسرا غرور ہے.
गुरूर, घमंड। अल्लाह के नबी ने फरमाया, एक आदमी को देखा जो अपने सर के बालों को, अपने कपड़ों को इतराते हुए चला, अल्लाह ताला उसे कब्र में, अल्लाह ताला उसे दफन कर दिया जमीन में, उसे क़ियामत तक अल्लाह दफन करते रहेगा। ये गुरूर, ये घमंड वो है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, ये घमंड करने वाला, ये गुरूर करने वाला, अल्लाह इसे मरने से पहले अजाब देता है। साहबा ने पूछा, अल्लाह के नबी घमंड का माना क्या है? अल्लाह के नबी ने कितने अच्छे अंदाज में कहा मालूम? अल किब्रु बतरुल हक़्क़ि व गमतुन नास। अल्लाह अकबर। घमंड का मतलब यह है, अल किब्रु बतरुल हक़, हक बात तुम्हारे पास है और हमारा दिल उसे लेने के लिए तैयार ना हो। दाढ़ियों को लेकर के मस्जिदों के मेंबर और मुसल्ले से आवाज लेकिन हमारा दिल उससे गाफिल, मैं नहीं लेता, मैं नहीं मानता उसको। कपड़े टकने के नीचे झाड़ रहे हैं, घमंड की अलामत है, काम मैं नहीं मानता इसको। वालिदैन हैं, बूढ़े माँ बाप है, अल्लाह ताला फरमाता, वला तकुल लहुमा उफ़्फ़िम वला तनहरहुमा। ओ नादान, तेरे रब ने तुझे उफ बोलने की भी इजाजत नहीं दी है। कहता मैं नहीं मानता इनको सुधारने के लिए डांटना जरूरी। अस्तगफिरुल्लाह। ऐसे गुरूर, ऐसे मुतकब्बिर इंसान को अल्लाह कब्र में अजाब देगा। अल्लाह हिफाजत करे। मैं क्या बताऊं इस बात पर। पांचवा वो आदमी, सही बुखारी की हदीस है, अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज की बात को सामने रखते फरमाया, बिरादरान इस्लाम, ये मेरे मुताले के बाहर है। मैं शेख सालेह अल उसैमीन के फतावे देख रहा था, अभी जुमा से पहले मुझे उस वक्त मिला। इसके अंदर ये बताया गया, एक वाइस, एक बयान करने वाला, एक दाई, ये दीन की दावत देने वाला, लोगों के सामने हक की दावत देता है। अल्लाह हिफाजत करे, लोगों को दीन की दावत दे रहा है, दावत तो देता है लेकिन खुद अमल नहीं करता, खुद अमल नहीं करता। अल्लाह हिफाजत करे। और अल्लाह के नबी ने फरमाया, अल्लाह इसको ऐसे अज़ाब देगा, खैंचियों से अल्लाह इसकी जबान को काट रहा है, ये अज़ाब उसे क़यामत तक ही मिलते रहेगा, क़यामत तक। कब्र का अज़ाब है। ऐसा दाई दीन की दावत दे और खुद अमल ना करे, लोगों को बुराई से बचने का हुक्म दे और खुद बुराइयों से ना बचे, अल्लाह ताला कब्र में इसको अज़ाब देगा। छठा वो इंसान जो जिना करता। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अल्लाह के नबी ने बयान किया, एक महलनुमा तंदूर, एक महलनुमा तंदूर, अल्लाह ताला इस तंदूर में मर्दों को, औरतों को नंगा डाल के जलाएगा। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम से अल्लाह के नबी ने पूछा, ऐ जिब्राइल, ये कौन लोग हैं? हजरत जिब्राइल ने फरमाया, अल्लाह के नबी, ये वो लोग हैं जो जिना किया करते थे। अस्तगफिरुल्लाह। ये कब्र के अंदर होने वाले अज़ाबात। आखिरी बात रख के अपनी बात को खत्म कर दूं। अल्लाह के नबी ने फरमाया, मैं जब मेराज की रात में देखा, एक आदमी है जिसके सर को कुचला जा रहा है, एक आदमी है जिसके सर को कुचला जा रहा है। अल्लाह के नौर पत्थर लुढ़क करके जब जाता है, वो पत्थर लाने तक उसका सर दोबारा सही हो जाता है, फिर पत्थर से कुचला, दर्द से पुकार उठता है। जिब्राइल से अल्लाह के नबी ने पूछा, ये कौन आदमी है, इसके सर को क्यों कुचला जा रहा है? कहा गया, ये नमाज तो पढ़ता था लेकिन नमाज को बड़ी सुस्ती के साथ पढ़ा करता। जो नमाज ही ना पढ़े उसका मामला क्या होगा? जिंदगी बाकी रही, फिर कभी आपके दरमियान आने का मौका मिला तो बेनमाजी के अंजाम पर रोशनी इंशाल्लाह जरूर डालूंगा। लोगों, बस इन्हीं बातों पे अपनी बात को खत्म करते हुए आखिरी नसीहत के तौर पे एक बात रखते आपसे रुखसत हो जाऊंगा। ये जिंदगी जो चल रही है, ये ना मेरी है ना आपकी है। अगर जीना होता तो कभी नबियों को मौत नहीं आती, अगर जीना होता तो सहाबा को मौत नहीं आती। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जैसे जलीलुल कद्र सहाबी एक टुकड़े को, एक लकड़ी के भूसे को लेके कहते, काश ये लकड़ी का तिनका मैं होता तो कितना अच्छा होता। खौफ दिलों में भरा हुआ था उनके। हालांकि अल्लाह ताला उनके बारे में सामने रखते फरमाता है, फ़इन आमनू बिमिथली मा आमनतुम बिही फ़क़द इहतदौ। वो क़यामत की सुबह तक आने वाले लोगों, मेरे सहाबा की तरह ईमान लेके आओ, तुम कामयाब हो जाओगे। उनका मामला ऐसा है। अल्लाह से दुआ है, अल्लाह तो हमारी हिफाजत फरमा, अल्लाह हर गुनाह को माफ कर दे, अल्लाह
ہمارے صغیرہ گناہوں کو معاف کر دے، ہمارے کبیرہ گناہوں کو معاف کر دے۔ اللہ ہماری مرنے سے، ہماری موت آنے سے پہلے پہلے مالک تو ہم سے راضی ہو جا، پروردگار تو ہم سے راضی ہو جا مالک۔ جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، بوڑھے ہیں، نوجوان ہیں، بچے ہیں، خواتین ہیں، اللہ تو سب سے راضی ہو جا مالک، تو سب سے راضی ہو جا پروردگار۔ ہمارے گناہ اتنے زیادہ ہی پروردگارا، کبھی کبھار شرم آتی ہے تیرا نام لیتے ہوئے، لیکن کیا کریں گے پروردگار، تیرے علاوہ ہمارا کوئی دعا سننے والا ہی نہیں ہے، تو ہی مجیب ہے پروردگار، تو ہی ہماری دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے۔ اللہ ہماری موت سے پہلے تو ہم سے راضی ہو جا، ہماری قبر میں اللہ ہمیں ثابت قدم رکھ پروردگارا، قبر میں ہمیں ثابت قدم رکھ اللہ، مرنے سے پہلے ہمیں ایمان پر زندگی گزارنے کی توفیق دے، موت بھی دے تو زبان پہ کلمہ شہادت نصیب فرما، آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔